multiplicative inverse. Now I'll give you a question. 2 plus 3i upon 1 minus 5i. Let's solve this sum first. ठीक है, इन्वर्स आ गया. सबसे पहले what I'm going to do is I'm going to write it like this. इसका रेसिप्रोकल लिख दूँ. Okay, we'll solve the sum first. So I've got the question as 2 plus 3i upon 1 minus 5. What I have done is I've just taken the reciprocal of it. जैसे ही मैंने reciprocal लिया, I have understood that there is an I value in the denominator. Whenever there is an I value in the denominator, all you have to do is you have to rationalize. अब rationalize the denominator. So I will multiply and divide by 2 minus 3i. जैसे मैंने multiply and divide by 2 minus 3i कर दिया, this becomes like this. 1 minus 5i into 2 minus 3i, the whole upon 2 square minus 3i square. If I open a bracket, this will become 2 minus 3i minus 10i plus 15i square, the whole upon 4 minus 9i square, which will become 2 minus 13i. I square is minus 1, so minus 15 upon 4 minus 9 times minus 1, which will become minus 13 minus 13i, the whole upon 13. And if I take 13 common, you will get minus 1 minus I, the whole upon 13, which is minus 1 minus I. So what I have done in multiplicative inverses, basically multiplicative inverse में हम लोग कुछ नहीं करते. Whenever there is a complex number, this is the definition with which we go for multiplicative inverse. The topic is multiplicative inverse. So what we do is, we write it like this, कि multiplicative inverse is a complex number. Okay, obviously multiplicative inverse is a complex numbers whose multiplication with a complex number gives answer 1. Okay, so it gives you the answer as 1. तो कुछ नहीं करना है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल गिव यू द आंसर एज 1. अब देखो ना, ध्यान से देखो मैंने क्या किया. ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे पूछा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है. आई हैव टेकन द रेसिप्रोकल, मैंने उसको रैशनलाइज कर दिया. जैसे ही रैशनलाइज कर दिया, आई नो दैट मेरा सबसे पहला बात मेरा 30 निकल गया है एंड आई हैव गॉट द आंसर. अगर मैं ए और बी से कंपेयर करूँगा या एक्स से वाई से कंपेयर करूँगा तो एक्स हैज़ बिकम -1 एंड वाई हैज़ बिकम -1. तो हाउ टू रिमेंबर इट क्विकली. सबसे पहले इनवर्स बोला, रेसिप्रोकल नहीं बोला, तो हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे. हमको रैशनलाइज करना है एंड वॉट एवर इज द आंसर. सी, बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कि देयर कैन नॉट बी एन आई वैल्यू इन द डिनोमिनेटर. अब सम पीपल डायरेक्टली, इफ यू रैशनलाइज इट डायरेक्टली, यू कैन ट्राई इट वंस. एक बार रैशनलाइज करो डायरेक्टली और देखो आंसर क्या आता है. उसके बाद तुमको अगर रेसिप्रोकल लेना है तो यू कैन ट्राई इट वंस एंड सी व्हाट इज सो डिफरेंट इन दिस स्टफ एंड इन दिस सम दैट वी हैव डन, जहाँ पे हमने पहले सबसे पहले हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है. जैसे ही रेसिप्रोकल लिया है, आई हैव रैशनलाइज्ड इट. सिंस आई हैव रैशनलाइज्ड इट, आई हैव गॉट इन द फॉर्म ऑफ a plus b. दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, नाउ लेट्स डू अ सम. x plus iy raised to 1 by 3 is equal to a plus ib. Okay, then k is equal to question mark where x upon a plus y upon b is equal to k into a square minus b square. k फाइंड आउट करना है और ये रिलेशन भी दिया है. द रिलेशन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सबसे पहले ना मेरा पावर फ्रैक्शन में दिया एंड फ्रैक्शन इज बेसिकली it's not in a whole number, it is not even a natural number. So the first thing that
we have to start it. Raised to 1 by 3 is equal to a plus I. I will take cube on both sides. जैसे मैंने क्यूब ले लिया, ये हो जाएगा x plus iy is equal to a plus ib the whole cube. Therefore, x plus iy is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. And now when I solve this will become x plus iy is equal to a cube plus 3a square bi. I square is minus 1, so this will become minus 3ab square minus b cube I. Because guys, we all know that I cube ka value is minus I. I cube ka value is minus I. Now I am left with no other option but equate. Equate किसको करेंगे? The non-x value, the non-I terms, that is all the real numbers, all the real values along with the real values and vice versa. ठीक है? तो what I am going to do is, सबसे हम लोग compare करेंगे कि left hand side में जो non-real value, जो non-I values है, तो x will become, x is equal to a cube minus 3ab square. So अगर मैंने a common ले लिया तो this will become a square minus 3b square. Therefore x upon a is equal to a square minus 3b square. So I've got x upon a. See, x upon a required. Next part, same with y. Y is equal to 3a square b minus b cube. Y is equal to b 3a square minus b square. Y upon b is equal to 3a square minus b square. And जब दोनों को ऐड करेंगे, so x upon a plus y upon b is equal to a square minus 3b square plus 3a square minus b square. This will become 4a square minus 4b square. And the last part is, if I write x upon a plus y upon b, if I take 4 common, this will become a square minus b square. It looks exactly like this. So x upon a plus y upon b is equal to 4 times a square minus b square. In other words, I can say that k is equal to 4. And this is your k ka value. So k is equal to 4. So what I have understood in this sum, when we solve these kind of sums, comparing jab rahega, you always compare the non-I values on both sides and you always compare the I values on both sides. This part is where you compare the non-I values and this is the part where you compare the I values. Has everybody understood this? Now, the tilting towards when we have done already, we have done the concept of conjugate of complex numbers. अब इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे. When I talk about conjugate of complex numbers, ठीक है, conjugate of complex numbers, ठीक है. In basic layman term, common man language, एकदम simple mathematical language में conjugate में I को इसको रिप्लेस करो विथ माइनस आई. पूरा खेल यही है. कॉन्जुगेट वर्ड सुना, जो भी आई वैल्यू है, अगर इट इज 10 प्लस 20 आई, मेक इट एज 10 माइनस 20 आई, दैट्स इट. और कुछ भी सोचना समझना नहीं. 10 प्लस 20 आई विल बिकम 10 माइनस 20 आई, दैट्स इट. आई को हमको माइनस आई से रिप्लेस करना. There is no second step about it. So if you replace I with minus I, we will get the conjugate. Example. किसी ने बोला z is x plus iy. Very good. We cannot write conjugate of z. Z bar will become x plus iy का बार. Conjugate को हम लोग हमेशा बार से डिनोट करते हैं. अब इसका conjugate, as we said कि I will be replaced by minus I, जिससे बार हो गया. In other words, guys, my z bar will become x minus iy. That's it. This is what we write. x plus iy का conjugate will become x minus iy. This is how you
डिनोट योर कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर 10 + 20 आया है उसके अगर बार डाल दिया तो इट विल बिकम 10 - 20 है। 10 बार नहीं होएगा। सी कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है, तुम्हारे रियल नंबर का साइन चेंज नहीं हो रहा है, जो भी मेरा आई वैल्यू है उसका साइन चेंज होगा। अगर आई पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। कैसे बोला? रिप्लेस आई विथ माइनस आई। कुछ नहीं, मतलब तुम लोग को रिप्लेस भी नहीं करना है, तुमको सब कही तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख दो, रिप्लेस भी मत लिखो, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दैट टर्म एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, से फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -3 + 4i। अब किसी ने बोला z बार क्या हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा -3 + 4i का बार, गाइस i रिप्लेस होगा, सो दिस विल बिकम -3 - 4i, दैट्स इट। हमको बाकी टर्म्स का फर्क ही नहीं पड़ता, i है उसका कॉन्जुगेट, वी आर जस्ट राइटिंग द कॉन्जुगेट, तो i को माइनस ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे व्हेन आई राइट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, I will become -i. If I becomes -i, all you have to do is you have to just multiply and divide by the conjugate. ये हम लोग जब सम में करेंगे तब करेंगे। तो रिमेंबर दिस, यहाँ पे मैंने लिखा था रिप्लेस, ये देखो +i -i +i -i। तो रिमेंबर कॉन्जुगेट सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस सम में हमने किया था, दैट्स व्हाई रिटन देयर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। ये देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट किया, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे अगर सिर्फ कॉन्जुगेट लिखना है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ i को -i से रिप्लेस करना है। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? तो कॉन्जुगेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ समझो ये क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 1/2 - 3i, ठीक है, 1/2 - 3i। मुझे पूछा इसका कॉन्जुगेट निकालो। सबसे पहले there is an i value in the denominator. Since there is an i value in the denominator, मुझे कुछ नहीं करना है, I am going to just multiply and divide by conjugate। पहला ये कर लेंगे 2 - 3i, इसको कर देंगे 2 + 3i अपॉन 2 + 3i। Did you guys understand this? Anybody has any doubts? अब देखो, अब अगर किसी ने बोला नहीं, चलो ठीक है, कॉन्जुगेट बोला है, कॉन्जुगेट बोलते हैं कि रिप्लेस आई विथ माइनस है, नो प्रॉब्लम, इसका कॉन्जुगेट निकालते 2 + 3i का बार, तो z बार विल बिकम 1/2 - 3i, सॉरी 2 + 3i। Did you guys understand this? Anybody has any doubts? मैंने क्या किया, पहले सिंप्लीफाई किया, सिंस आई सिंप्लीफाइड इट, नॉर्मल सिंप्लीफाई किया, जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये देखो क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू 2 - 3i, और नीचे देखो a + b a - b, इट विल बिकम a² - b², तो z बार विल बिकम 2 - 3i अपॉन 13, ठीक है। आई विल शो यू। अब किसी ने बोला नहीं, व्हाट इफ आई रैशनलाइज दिस फर्स्ट एंड देन आई टेक द कॉन्जुगेट, लेट्स डू दिस। समझो पहले मैंने इसको रैशनलाइज किया, सो z विल बिकम 2 + 3i अपॉन 4 - 9i², z will become 2 + 3i upon 13, and इसका conjugate will become do it anyway, your answer will never change। rationalize करके conjugate लो, conjugate करके rationalize लो, that's up to you। this way or that way everyone will get the same answer। so when I solve this I need to understand कि मेरा conjugate कहाँ है, मेरा conjugate कैसे आएगा,
Should I take the conjugate first and rationalize? Should I rationalize and take the conjugate first? It's going to be one and the same. Did you guys understand this? Any doubts here? So this is what we are talking about, the conjugate part. Now इसका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वही कॉन्जुगेट का रिफ्लेक्शन. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ दिस? ओके, रिफ्लेक्शन मैंने 4 एक्सिस ले लिया. okay. मेरा रियल एक्सिस, ये है मेरा रियल एक्सिस, ये है मेरा इमेजिनरी एक्सिस. ओके, ये है मेरा रियल एक्सिस, ये है मेरा इमेजिनरी एक्सिस. ओके, एंड सबका फेवरेट, I'll take the question as z is equal to x plus iy. Okay, z is equal to x plus iy. Okay, मुझे पता है z is equal to x plus iy में x पॉजिटिव है. यहाँ पे x, we are taking x as positive and y as positive. Since we know that x is positive, y is positive, it is going to lie in the first quadrant. तो अगर मैंने इसको प्लॉट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे. ये है मेरा z x comma y. ठीक है, आई हैव टेकन दिस एज z x comma y बिकॉज मुझे पता है कि x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, इट इज गोइंग टू कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब बोला ठीक है, z x plus y. नाउ इमेजिन दिस इज द मिरर. ओके, दिस रिफ्लेक्शन विल कम हियर. ओके, दिस रिफ्लेक्शन विल कम हियर. अगर ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया, ओके, लेट्स टेक इट लाइक दिस. We all know that x is negative, y is positive. Okay, x is negative, y is positive. यहाँ पे है x is negative, y is positive. ओके, इसका रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पे हमने z लिखा है x, y. यहाँ पे मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखा है, इसके आगे z भी आना चाहिए. बट ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. x इज नॉट चेंजिंग, सॉरी, y इज नॉट चेंजिंग, x इज चेंजिंग. सुनो ध्यान से व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. x प्लस iy में x चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है. It means that, pay attention, if I write as z bar, it will become x minus iy. ये तो z bar है, x minus iy. बट मुझे x minus iy चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? minus x plus iy. I am getting the exact opposite of this. And if I am getting the exact opposite of this, it means that this coordinate is minus z bar. So minus z bar will become minus x plus iy. Simple. And this is exactly what we have got. Minus x plus iy. तो इसका नाम है minus z bar. So remember this. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट है, उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट में रिफ्लेक्शन रहेगा माइनस z बार. So we have understood that इसका रिफ्लेक्शन है minus z bar. Okay, we'll go step by step. So I can put this here. इसको हम लोग सेकेंड पार्ट लेंगे. Now, if I continue with the reflection, okay, continue with the reflection. इसका ही रिफ्लेक्शन कंटिन्यू किया हमने. हमको पता है इसका कोऑर्डिनेट रहेगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई. इसका मतलब है मेरा x चेंज नहीं हो रहा है बट मेरा y चेंज हो रहा है. मेरा x चेंज नहीं हो रहा है बट मेरा y चेंज हो रहा है इसमें से. एंड अगर इससे कंपेयर करेंगे, इससे अगर कंपेयर करेंगे, इफ यू वांट टू डू इसका कंपैरिजन, तो x का वैल्यू नेगेटिव हो गया है, y का वैल्यू नेगेटिव हो गया है. दैट इज ओनली पॉसिबल, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आई टेक वैल्यू ऑफ माइनस z. Value of minus z will become minus x plus iy
which is minus x minus iy. So guys, this is nothing but minus z. ये minus z का coordinate. So first coordinate is z, second coordinate becomes minus z bar, थर्ड क्वाड्रेंट ना एग्जैक्ट इसका है. तो अगर किसी ने बोलेगा कि चलो मैंने यहाँ से एक मिरर बना दिया, यहाँ से मिरर बना दिया, इमेजिन कि यहाँ से ऐसा मिरर बना है, इमेजिन दिस इज द मिरर, इमेजिन दिस इज द मिरर, ये मैंने मिरर बनाया. अगर ये मिरर बनाया तो एग्जैक्ट इसका रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी ऑपोजिट. एंड सिंस इसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली इज ऑपोजिट, व्हाट वी डू इज, ये x का हो गया है यहाँ पे माइनस एक्स बिकॉज कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गया, एंड ये हो गया है y इज माइनस वाई. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट पार्ट, अब तुम यहाँ से जाओ, वहां से जाओ, कहीं से भी जाओ, यहाँ पे भी आ गए हम लोग, यहाँ पे भी आ गए, ऐसे भी आ गए, ऐसे भी आ गए. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, मुझे ये तो पता है इसका कोऑर्डिनेट रहेगा x कॉमा माइनस वाई. एक्स कॉमा माइनस वाई सबसे इजी, सबसे इजी. दिस इज नथिंग बट z bar. So my fourth quadrant denotes कि z bar will become x plus iy the whole bar, which will become x minus iy, where x is positive and y is negative. And these are your four quadrants. So when I start with x positive, y positive, second quadrant में we know that z will become minus z bar. नीचे आ गया तो वो माइनस, इस सब लोग एक दूसरे का कॉन्जुगेट देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे ना, सब लोग एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो रहा है. एंड ये इसका हो गया जी बार, ये हो गया माइनस जी बार, इसका हो गया माइनस जी. दिस इज हाउ योर रिफ्लेक्शन वर्क्स. यू कैन स्टार्ट एनी हाउ, इसको ले सकते हो, फिर इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. सी कोऑर्डिनेट्स हम लोग प्लॉट कर लोगे, कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग का प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम है कि हाउ आई गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ जी एंड जी बार. सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. ये स्ट्रेट लाइन्स में भी आएगा. Reflection is a very important part of 2D and 3D. Okay, now a very important concept. Properties of complex conjugate numbers. Properties of complex conjugate numbers. Properties of complex conjugate numbers. Okay, there are certain properties. अब ये properties हमको याद रखना है. यहाँ से we can say that complex numbers थोड़ा start हो रहा है, where the first set of properties are properties of complex conjugate numbers. First property. Okay. Z bar the whole bar. Z. Let's take an example. Okay. ठीक है, I'm taking a plus b. Z bar will become a minus b. Z double bar will become a plus b. Simple. It's like negative का negative becomes positive. Conjugate का conjugate becomes the actual complex number. The first thing I understand is z bar the whole bar is nothing but z. Z bar the whole bar is nothing but z. Second part. Z को यहाँ पे ध्यान से देखो. If I add z with the conjugate, look at this. If I add z, इसको साइड में कर लेते हैं. अगर मैंने दोनों को ऐड किया, ये देखो, अगर दोनों को ऐड किया, देख के मालूम पड़ रहा है कि मेरा इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो रहा है. एंड माय आंसर इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z. देखो ध्यान से, bi एंड माइनस bi गेट्स कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ 2a. तो z प्लस z बार इज इक्वल टू ट्वाइस रियल वैल्यू ऑफ z. सेकेंड, z माइनस z बार, let's subtract this. ठीक है, I'm going to subtract it. देखो ध्यान से देखो, मैंने ये subtract कर लिया, यहाँ पे subtract कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया. जैसे subtract कर लिया
तो ये ए पार्ट निकल गया. आई एम गेटिंग z माइनस z बार is equal to 2bi. Has everybody understood this? So z minus z bar will become, this will become twice I into imaginary part of z, and imaginary part of z is nothing but b. Real part is a, imaginary part is b. So 2i into imaginary part of z, or the twice imaginary part of z into I, whatever is comforting. This is what we have solved here. Okay. Next, if someone tells me what is z1 plus z2 the whole bar, guys, this is z1 bar plus z2. अगर मेरे पास है z1 plus z2 plus z3 plus z4 plus z5 plus z6 up to 100, z100 the whole bar, you have the luxury of splitting it. अब ये एडिशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, z1 plus z2 the whole bar will become z1 bar plus z2 bar. One of the properties. So सबसे पहला property is, अगर conjugate का conjugate लिया, it will give you the original complex number. If I add two complex numbers where one is the conjugate of other, you get twice of real values of x, okay, of z, that is 2x आ जाएगा, that is real value of z. अगर conjugate से करेंगे तो 2i into imaginary part of z, and if z1 plus z2 the whole bar is given as z1 plus z2 the whole bar can be written as z1 bar plus z2 bar. Next, z1 into z2 the whole bar can be written as z1 bar times z2 bar. You can again make sure that जैसे एडिशन के लिए है, if it is for multiplication, you have the luxury of writing it as z1 into z2 bar is equal to z1 bar times z2 bar. So this is what is very important, कि हाँ मैं going to write z1 bar into z2 bar. कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग कर दो, दोनों का कॉन्जुगेट कर लो, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा. नेक्स्ट, सो सी वी हैव डन एडिशन, ऑब्वियसली यू नो सब्ट्रैक्शन भी रहेगा, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो लगे हाथ डिवीजन भी कर लेते हैं. z1 upon z2 the whole bar is equal to z1 bar upon z2 bar. तो z1 upon z2 the whole bar, अगेन मल्टीप्लिकेशन में भी अलग हो गया, डिवीजन में भी अलग होगा, एडिशन में भी अलग होगा, सब्ट्रैक्शन में भी अलग होगा. सो अगेन इंपॉर्टेंट. अब अगर ये दिया है, समझो जी स्क्वायर द होल बार की, जी स्क्वायर द होल बार, you can without thinking, if you know this, you can write it like this. तो अगर बोला है z raised to 10 the whole bar is nothing but z bar the whole raised to 10, you will get the same answer for it. तो remember this, अगर यहाँ पे क्यूब दिया है, जो भी दिया है, कॉन्जुगेट करोगे तो भी आंसर आ सकता है, जो भी इजी वे रहेगा. You have to take a call that time कि what is the easiest part. Should I square and then take the conjugate, or should I put the power and then take the conjugate, or should I take the conjugate and then put the power? It all depends on what the sum demands. Last one, ठीक है. अब देखो, if z is equal to z bar, okay, देखो ध्यान से देखो, we're going to solve it here. If z is equal to z bar, okay, purposely I have taken a plus b, I have not taken x plus I. थोड़ा refreshing, कुछ different. So I'll write a plus bi is equal to a minus bi. Okay, a plus bi is equal to a minus bi. देख के पता चल रहा है कि ये a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया. So I will get 2bi is equal to 0. And 2bi is equal to 0, मतलब मुझे पता चलता है कि b is equal to 0. तो I can write therefore b is equal to 0. Obviously real part z is equal to z part तभी होता है when y is equal to 0. तो यहाँ पे I'll write z is equal to z bar, therefore y is equal to 0. Therefore it is purely real.
तो रिमेंबर दिस, अगर किसी ने बोला कि इट इज प्योरली रियल, द फर्स्ट कंडीशन दैट शुड कम टू माई माइंड इज जी इज इक्वल टू जी बार, खत्म. एंड अगर किसी ने बोला कि जी इज इक्वल टू जी बार, तो यू आर गोइंग टू राइट इट एज प्योरली रियल. वैसे वर्ष होता है. If z is equal to z bar, then it is purely real. If it is purely real, then it is z is equal to z bar. Have you guys understood this? Anybody has any doubts? ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज तक अभी तक लिख के लेंगे. Everyone please start writing. और अगर मैंने यहाँ पे ले लिया z इज इक्वल टू माइनस जी बार, z इज इक्वल टू माइनस जी बार, so a plus bi will become minus a plus bi, so 2a is equal to 0. It means that a is equal to 0. Therefore, I'll write x is equal to 0, therefore it is purely imaginary. And this is a very important concept of complex numbers, the properties of complex conjugate numbers. And these are the 8 or 9 properties. इसमें से obviously you can always derive this one, this one, this one, you can derive this. You need to understand this. These are all basic conjugate properties which are very important for solving the sums. Now let's take a sum. If z square plus z plus 1 is real, then, ठीक है, then x is equal to question mark, y is equal to question mark. अब क्लियरली बोला है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज रियल. रियल रियल तब होता है, प्योरली रियल, प्योरली रियल तब होता है when z is equal to z bar. यहाँ पे दिया है इट इज रियल, मतलब प्योरली रियल. सो आई विल राइट given that z square plus z plus 1 is real, therefore z square plus z plus 1 is equal to z square plus z plus 1 the whole bar. Simple. Try to understand कि दिया है कि it is real, and since it is real I understand that z square plus z plus 1 is equal to this. So I'll write z square plus z plus 1 is equal to z square bar plus z bar plus 1. सबसे पहले निकल रहा है, ठीक है. So I will write z square plus z is equal to z bar square plus z bar. I'll take it everything on the left hand side. So z square plus z minus z bar square minus z bar. Okay. Minus z bar. So ये हो जाएगा z square minus z bar square plus z minus z bar is equal to 0, which is z minus z bar, z plus z bar plus z minus z bar is equal to 0. In other words, I will get, if I take z minus z bar common, guys, I am left with z plus z bar plus 1 is equal to 0. Now, if I write z minus z bar is equal to 0, अब इससे ना I can equate. So देखो ध्यान से, I will write either z minus z bar is equal to 0 or z plus z bar plus 1 is equal to 0. अब ये देखा देखा हुआ लग रहा है, z minus z bar is equal to 0, ये देखा है, कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है अभी मालूम पड़ गया, z is equal to z bar. अब यहाँ पे मिल गया z is equal to z bar. अब अगर मैंने लिख दिया z is equal to z bar, so I will get, ये देखो z is equal to z bar.
z इज इक्वल टू जी पर में मुझे पता है कि y का वैल्यू होगा 0, जो यहाँ पे मालूम पड़ गया था। तो आई जस्ट वेरीफाइड द थियोरी कि हाँ दिस इज इक्वल टू 0, तो आई विल राइट देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज प्योरली रियल। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तुमको रियल समझना चाहिए कि रियल दिया है तो y इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, सो दिस विल बिकम, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस हियर, तो z को अगर मैंने ले लिया x प्लस आई वाई, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो z बार विल बिकम x माइनस आई वाई। गाइज मुझे पता है कि x का वैल्यू 0 है, और सॉरी y का वैल्यू 0 है, सो दिस विल बिकम x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो आई विल गेट 2x plus 1 equal to 0. So x is equal to minus half. So I have got x का value and I have got y का value, where x is equal to minus half and y का value is 0. Has everybody understood this? तो ये क्वेश्चन से मालूम पड़ता है कि x का वैल्यू क्या है, मेरा y का वैल्यू क्या है. If this is real number and this is real number, this is how you will proceed with the sum. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? So ये मेरा प्योरली रियल था. ओके, नाउ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब मॉड्यूलस होता क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from the origin. हमने यहाँ पे बना है आर्गन प्लेन, ये मेरा आर्गन प्लेन है, ठीक है, समझो मेरा आर्गन प्लेन है. किसी ने बोला यार x प्लस आई वाई पॉजिटिव, सो आई टेक दिस पॉइंट, ठीक है, z x कॉमा y विच इज x प्लस आई वाई. मेरा ये डिस्टेंस है 0,0 ओरिजिन. हाउ डू आई फाइंड द लेंथ? ऑब्वियसली डिस्टेंस बोला है तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना होगा. अब आई हैव x1 y1, आई हैव x2 y2, तो अगर मैंने ऐसा ले लिया z is equal to x plus iy. See, I have taken z. I have taken z is equal to x plus iy. First quadrant, x positive है, y positive है, x and y real numbers, दोनों positive है, मतलब they are going to lie in the first quadrant. अब z is equal to x plus iy है. अब किसी ने बोला ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो. गाइस, इसका डिस्टेंस का मतलब होता है मैं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व करूंगा. So 0 minus x the whole square plus 0 minus y the whole square, which is nothing but mod of z is nothing but under root of x square plus y square. Guys, this is the modulus का formula. Modulus क्या बोलता है? Distance from the origin. तुम्हारे पास एक पॉइंट है, say for example my point is 3,4. My point is 3,4. The modulus of 3,4 is going to be 3 plus 4 है. The modulus is going to be under root of 3 square plus 4 square. Remember this, huh? एक चीज याद रखो. अब कोई बोलेगा नहीं, ओके, इमेजिन आई हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस. z is equal to -3 minus 4 है. So mod z will become under root of, see how I'm going to write, it is -3 the whole square plus -4 the whole square, which is equal to 5. रूट के अंदर जब तुम लोग मॉड्यूलस निकाल रहे हो तो a एंड b स्क्वायर करने के बाद इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव. नेगेटिव रूट के अंदर जाएगा ही नहीं, सिंप्लीफाई करने के बाद वो पॉजिटिव बन जाएगा. रिमेंबर दिस, मॉड्यूलस का फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ -3 द होल स्क्वायर, दैट इज -x द होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दिस इज द मॉड्यूलस का फॉर्मूला. नाउ if I have to just continue, and obviously we'll be doing this again, but say for example
just revising this, we'll be doing the second part also. If इसका coordinate z is x plus iy, basically 3, 4, 5, 6, 7, 8, तुमको जो लेना है लो. मैंने ले लिया x, y, इसको मैंने a ले लिया, इसको समझो b ले लिया. I want this value and this value. What is this value? This is x and this is y, and this is obviously a right angle, ये perpendicular बना है. And if I take this as theta, and if I take this as theta, I will get tan theta is equal to y by x, because according to trigonometry we know that tan is opposite upon adjacent. So if this is theta, this is your opposite and this is your adjacent, and I will get the value of tan theta is equal to y by x. Now this is going to be one of the most important concepts when we have to find the argument and the amplitude in the argand plane. So modulus, amplitude and argument सब कुछ इससे cover होता है. So as of now I'm just introducing you to this concept कि tan theta कैसे मिलता है. Well, I get the x. So याद रखो, it is always y by x whenever you find tan theta. अगर मुझे कोई complex number दिया है, मतलब मेरे पास x और y coordinate है, and since मेरे पास x और y coordinate है, कुछ नहीं करना है. tan theta is equal to y upon x. y भी दिया है, x भी दिया है, मुझे सिर्फ एंगल निकालना है. एंगल क्या है? ये लाइन जो x एक्सिस से बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं the angle made. And remember this, in straight lines when we do, in coordinate geometry when we do, theta is always taken with respect to positive direction of x axis. हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बनता है, और कोई भी एक्सिस के साथ, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी नहीं. ऑल द एंगल्स आर मेड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. आई रिपीट, ऑल द एंगल्स आर मेड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. और ये एक ही अपना लौता पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो रिमेंबर दिस. हम मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. चलो नाउ if z is a complex number, such that ये क्वेश्चन थी, ठीक है, मॉड जी पूछा, मतलब मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. z क्यूब प्लस 3, दैट इज नॉट z. देखो, वेन एवर आई राइट z विल हैव अ टेल नीचे. z क्यूब प्लस 3 इज द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16. मुझे निकालना है मॉड z का वैल्यू. क्वेश्चन बराबर है? यस, परफेक्ट, क्वेश्चन बराबर है. ओके, अब और सॉरी, सबसे पहले स्क्वायर दिख रहा है. अगर मैंने ऐसे किया, z क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ -16, विच इज z क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है. कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपना ही कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो z क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है. मतलब z cube is equal to -3 plus 4. Anybody has any doubts? So what I have done is, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ तक. This is what has been given to me. Z cube is given to me. Mod of z cube is -3 plus 4 है. कैसा आ गया? मैंने सिंप्लीफाई किया. I have got z cube as -3 plus 4 है. अब मुझे पूछा है z का वैल्यू. I will write z as -3 plus 4i raised to 1/3. Now they have not asked z का value, they have asked mod z का value. अब if I get z as -3 plus 4i, so let's find the modulus.
So mod z will become mod of -3 + 4i raised to 1/3. हमको पता है mod कैसे निकालना है. Mod z will become √ of -3 square plus 4 square raised to 1/3. तो mod z will become √ of 25 raised to 1/3. तो mod z will become 5 raised to 1/3. That's it. सिंपल. कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है. अब ये कहाँ से आया? प्रॉपर्टीज से, जो हम लोग अभी लिखेंगे. इसलिए आई स्टार्टेड विद द सम विदाउट द प्रॉपर्टी, बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, दे आर शेयरिंग अ प्रॉपर्टी. कॉन्जुगेट लेके पावर डालो, पावर लेके कॉन्जुगेट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इन द सेम वे मॉड लेके पावर डालो, पावर लेके मॉड डालो. और देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा नहीं टीडियस है कि -3 + 4i का क्यूब रूट निकालेंगे. पहले सिंप्लीफाई करो. तुमको मिला है एक होल नंबर. जैसे ही होल नंबर मिल गया, कोई स्ट्रेस ही नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू इज सीधा पावर चिपका दो and 5 raised to 1/3 is the answer. Has everybody understood this? So, अब how different are properties of modulus than conjugate? Let's decide this, okay? So, properties of modulus. Okay, सुनो. मेरा मॉड सिर्फ एक कंडीशन पे 0 रहेगा. मेरा मॉड सिर्फ एक कंडीशन पे 0 रहेगा. एंड आई रिपीट अगेन, मेरा मॉड सिर्फ एक कंडीशन पे 0 रहेगा, जब x 0 और y 0 है. बिकॉज स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स है अंदर. देखो मॉड क्या है? x² + y². स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स तब 0 रहता है जब दोनों 0 रहेगा. बिकॉज वो लोग कभी नेगेटिव बनेंगे नहीं. अगर नेगेटिव नहीं बनेंगे तो एक ही कंडीशन है. अगर किसी ने बोला a² + b² + c² 0 है, वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है. वो तब पॉसिबल है जब तीनों 0 है. तुम लोग एक कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी अंडरस्टैंड दैट मॉड ऑफ z तभी 0 रहेगा जब दोनों 0 रहेंगे. दोनों मतलब if I take z as x + iy, then x will also be 0 and y will also be 0. Hence the modulus will be 0. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड, z into z bar. Okay, let's do it here. z into z bar. Guys, मैंने z को ले लिया x + iy, मैंने z बार को ले लिया x - iy, और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x + iy into x - iy, which is x² - i² y², which is x² + y². When you multiply a complex number with its conjugate, सुनो ध्यान से मेरी बात. एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, लाइफ में चिल कर रहा था, फिर लाइफ में कॉन्जुगेट आया. They have become square of the modulus. Exactly square of the modulus. कैसे? मॉड का फॉर्मूला इज √ of x² + y². एंड अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो दिस विल बिकम x² + y². Has everybody understood this? So remember this. When you multiply a complex number with its conjugate, my answer is going to be mod z². मतलब मॉड्यूलस का स्क्वायर. इट इज गोइंग टू बी मॉड्यूलस का स्क्वायर. लुक एट दिस फॉर्मूला, लुक एट दिस फॉर्मूला, एवरीवन लुक एट दिस फॉर्मूला और ध्यान से देखो एंड टेल मी. ये फॉर्मूला अगर मैंने ऐसे लिखा, z upon mod z is equal to mod z upon z bar. I have not done anything different. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सुनो, ध्यान से देखो, ये मॉड z बार है, एक इसके नीचे डाल दिया और ये z बार को इसके नीचे डाल दिया. इट इज नॉट अ न्यू फॉर्मूला. आई जस्ट चेंज द पोजिशनिंग ऑफ टू टर्म्स. कौन सा दो टर्म? एक मॉड z को नीचे डाल दिया और z बार को नीचे डाल दिया. आई हैव टेकन वन मॉड z इन द डिनोमिनेटर
and I have taken z bar in the denominator. ये फॉर्मूला यहाँ से आया, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. नेक्स्ट वन, ओके, ध्यान से देखो. ओके, देखो z raised to minus 1 is equal to mod z bar upon mod z. Look at this. Okay, look at this. मैंने सबका रेसिप्रोकल ले लिया. रेसिप्रोकल छोड़ो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. आई हैव जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. तो देखो, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बिकम z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन z. आई हैव जस्ट इसको इसके जगह डाल दिया, इसको यहाँ पे डाल दिया. दैट्स इट, ये मिल गया. एंड लास्ट में मैंने लिखा z रेज टू माइनस 1 विल बिकम z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर. इससे डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? सो ये है सबसे मेन फॉर्मूला. इसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके सेकंड फॉर्मूला है, इसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके थर्ड फॉर्मूला. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? तो वी आर नॉट डूइंग एनी न्यू फॉर्मूला गाइस. हम लोग सिर्फ पूरा खेल मिक्स एंड मैच कर. तो देखो वहां पे देखो, मॉड z बार अपॉन मॉड z बार स्क्वायर इज इक्वल टू z रेज टू माइनस 1. सेम, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको थोड़ा सा पोजिशनिंग चेंज किया, हल्का सा पोजिशनिंग चेंज, एंड यू गेट द आंसर. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, ओके, कॉन्जुगेट जैसा फॉर्मूला. mod of z1 z2 can be written as mod z1 times mod z2. ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला, सेम फॉर एडिशन, सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर लिख देंगे mod of z1 अपॉन mod z2 इज इक्वल टू mod z1 अपॉन mod z2. गाइस एडिशन के भी सेम. z1 तुमको ऐड करके mod लेना है, तुमको mod लेके ऐड करना है, दैट्स अप टू यू. आंसर सेम आएगा, आंसर कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा. So it all depends on how you want to simplify this. And last में obviously हमने पहले से यूज कर दिया था. This is the example that we used in the previous sum. This is the example that we used कि तुमको स्क्वायर करके मॉड लेना है, तुमको मॉड लेके स्क्वायर करना, मतलब पावर लेना है. समझो z स्क्वायर द होल मॉड कर लिया, परफेक्ट, लवली. z मॉड को स्क्वायर कर दिया, परफेक्ट. आंसर एक कांस्टेंट ही होगा क्योंकि लास्ट में तुमको मॉड लेना ही पड़ेगा. सो दीज आर सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ओके, ठीक है. एक सम करते हैं टू अंडरस्टैंड this better. Okay, if z is a complex number such that, okay, ध्यान से सुनो क्वेश्चन. if z is a complex number such that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, then mod of z is equal to question mark. ओके, मॉड का सम बहुत अच्छा सम है. z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आई विल टेक z एज x प्लस आई वाई. एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आई विल टेक z एज x प्लस आई वाई. ओके, सच दैट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी. देन आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड z. सबसे पहले z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और बोला है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी. अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इफ वी नो दैट समथिंग इज प्योरली इमेजिनरी, z is equal to minus z bar, purely imaginary. And since we know that z is equal to minus z bar, यहाँ पे this is purely imaginary. So I'll write z plus 1
z minus 1 upon z plus 1 is equal to minus of z minus 1 upon z plus 1 the whole bar. Okay, प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, दिस इज व्हाट इज गिवन एज प्योरली इमेजिनरी. हमको कुछ भी नहीं करना, ये कंडीशन दिया हुआ है कि इट इज प्योरली इमेजिनरी. अब ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी हमने यूज किया. सो पहले सिंप्लीफाई करते हैं. z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस z बार माइनस 1 अपॉन z बार प्लस 1. ओके, प्रॉपर्टी यूज किया, बार डाल दिया, सबको बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कांस्टेंट पे कॉन्जुगेट कभी नहीं होगा, वो कांस्टेंट है. 1 माइनस 1 नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. ओके, इसके बाद वन आई ओपन द ब्रैकेट, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस z बार प्लस 1 अपॉन c बार प्लस 1. Now, this will become z minus 1 upon z bar plus 1 is equal to minus z bar plus 1 into c plus 1. Now I'll open the bracket. Z bar plus z minus z bar minus 1 minus z bar z minus z bar plus z plus 1. Okay, now I'll see if anything is getting cancelled. Yes, plus z minus z bar minus z bar. So twice z bar is equal to 2. Therefore, z bar is equal to 1. We know that z bar is mod z square is equal to 1. Hence, mod z is equal to 1. Did you guys understand this? Basic properties. हमने x plus i y भी नहीं डाला है, हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाला है. I have just substituted the value कि this is the given data, z is equal to complex number such that z minus 1 upon z plus 1 is pi. Then the value of mod z is equal to this. Since it's a purely imaginary number, हमने ये substitute किया and I have got the answer. Has everybody understood this? Anybody has any doubts? So now एक question तो तुम लोग try करोगे. Okay. If x plus iy the whole raised to 5 is equal to p plus iq. Okay. Prove that y plus ix raised to 5 is equal to q plus ip. Take sum. Once you're done, you will try this sum and we will be discussing it in the next class. Okay. Chalo. Start writing everyone.